के सेहत विभाग की तरफ से करोड़ों रुपए की दवाइयां पंजाब की अलग अलग डिस्पेंसरियों में सप्लाई की जाती है ताकि मरीज को मुफ्त में दवाई मिल सके और वो उसका लाभ उठा सकें। पर सेहत विभाग के कर्मचारी दवाइयों को रफा दफा कर देते हैं और मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने में पीछे नहीं रहते। सरकारी अस्पतालों पर कौन यकीन करेगा? ऐसी मिसाल देखने को मिली है नाभा ब्लॉक के गांव बाबरपुर में बनी सरकारी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, जहां यहां के स्टाफ की तरफ से डिस्पेंसरियों में दवाई की मियाद खत्म होने के बाद भी इन दवाइयों को अंदर ही दबा दिया जाता है और बाकी दवाइयों की डेट निकलने के बाद दवाइयों को ऑपरेशन थिएटर और हर कोने में पड़ा देखा जा सकता है। गाँव वासियों की तरफ से डिस्पेंसरी के स्टाफ पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। दूसरी तरफ सिविल सर्जन पटियाला की तरफ से सख्त कार्रवाई करने का भरोसा भी जनता को दिलाया गया है। नहीं जी मैं कहना आह दवाई बारे पहली बार देखा ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋ ਰਹੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ 'ਚ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੱਬਣੀਆਂ ਠੀਕ ਨੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਨੇ? ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਬਾਬੂ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ ਆਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ ਗਰੀਬ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਣ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਦਵਾਈਆਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰਲੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਨਾਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਬਚਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਫਿਰ ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁਣ ਖਬਰ ਕਰ ਦੱਬੇ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਉਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਰੀ ਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨੌਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ 6-7 ਸਾਲ ਜਿਆਦਾ ਠੇਕੇ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਠੇਤੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲੇ ਇੱਕ ਥੈਲਾ ਭਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ 2014 ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਹ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਟਰੇ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਆਪ ਖੁਦ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜੀ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਟਰੇ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਹਾਂ ਰੂਮ 'ਚ ਪਈ ਆ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਰ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸਟੋਰ ਚੋਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਗਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਜੀ ਉਹ ਬੀਟਾਡਿਨ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਕਸਪਾਇਰ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਉਹ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਆਪੇ ਯੂਜ਼ ਥੋੜੀ ਕਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸੀਲ ਬੰਦ ਨੇ ਸਰ ਹੋਣੀ। ਮੈਡਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੜਬੜਾਹਟ ਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਚੰਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦਵਾਈਆਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਖਰਾਬ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਕਿਹੜਾ ਦੇਖਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਨਾ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹਾਂ ਜੇ ਕਥਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੰਡਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਹੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਾਇਰਡ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਲਿਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਤਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੀ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਬਲਾਕ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਭਾਦਸੋਂ ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਮਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਸ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ 'ਚ ਪਰਸਨਲੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਔਰ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰਬੰਦ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਥਾਂ ਪੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚ ਦੱਬਣ ਦਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਜ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ
ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਮੈਨੂੰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। गुरमीत प्रचार सभा इलाका दोरांगला की तरफ से शाहिद बाबा जिरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह और माता गुजर कौर की याद में पहला शहीदी गुरमीत समागम दीनानगर हलके के गांव बहलीपुर के गुरुद्वारा साहिब में प्रधान भाई काबल सिंह और इंचार्ज गुरनाम सिंह बैंस की अध्यक्षता में करवाया गया, जिसमें बच्चों के दस्तार, कविता, कविश्री, भाषण और कीर्तन के मुकाबले करवाए गए और विजेता बच्चों को सम्मानित भी किया गया। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਬਹਿਲੋਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰਾਂ 'ਚ 10 ਦਿਨ ਚੱਲੀਆਂ। ਇਹ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤੇ 15 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 250-300 ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੰਠ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਦਸਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਕਵਿਤਾ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਲੈਕਚਰ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ। पठानकोट में आतंकवादियों की तरफ से किए गए हमले के विरोध में आज दीनानगर में शिवसेना की तरफ से पाकिस्तान का राष्ट्रीय झंडा और प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का पुतला फूका। कमेटी की अगुवाई पार्टी के शहरी प्रधान अजय कुमार ने की। इस मौके पर बस स्टैंड के बाहर जीटी रोड पर कुछ समय के लिए आवाजाही भी ठप हो गई। इस मौके पर जिला प्रधान अरावती महाजन, कमल बिट्टू और शहरी प्रधान अजय कुमार ने कहा कि भारत सरकार की अब ये अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ जितना मर्जी शांति समझौता कर लिया जाए, पर अपनी गलत हरकतों से कभी भी वो बाज नहीं आएंगे। पंजाब सरकार की तरफ से जहां औरतों की हिफाजत के लिए विशेष कोशिश की जा रही है, वहीं नाभा ब्लॉक हादसों में पिछले 9 दिनों से शिक्षा विभाग के वॉलंटियर कुलवंत कौर अपने साथ हुए बदसलूकी के मद्देनजर ब्लॉक प्राइमरी शिक्षा अफसर के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठी हैं। पीड़ित कुलवंत कौर ने ब्लॉक प्राइमरी शिक्षा अफसर बलकार कौर और बीआरसी यादविंदर सिंह की तरफ से जबरदस्त बदतमीजी के संबंध में दफ्तर में जोर आजमाइश के दोष लगाए। पीड़ित कुलवंत कौर ने अब जान से मारने की धमकियां भी आ रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस संबंध में बीपीओ के बलकार कौर से बात की तो उन्होंने अपने पर लगे आरोपों को निराधार गलत बताया। करदी मेरे स्कूल का नाम मटोड़ा है जी, तो ये सर 6 तरीक की घटना है जी। तो मैडम ने साड़ी बिना सहमति तो बाद बदली करती सी, साड़ी कोई सहमति नहीं ली गई। जी कुड़ी इन्होंने सैट करना सी ना, उन्होंने तो मैडम ने चंगे पैसे खादे सीगे। तो 6 नवंबर सानू ऑफिस दे विच इत्थे बुलाया गया। बुला के इत्थे ऑफिस दे विच ना मेरे नाल सर सी बलवीर सर, उन्होंने बाहर कढ़ता, मेरे नाल गए सी ऑफिस, कढ़ के उत्थे नाल मैडम दे ना ऑफिस दे विच यादविंदर सिंह BRP है इत्थे, वैसे वो ड्राइवरी भी करदा। तो मैडम ने उन्होंने कहा कि ऑफिस की कुंडी बंद करो, उन्हें कुंडी बंद की। तो मैंने कहते मैडम तुसीं इत्थे सहमति दे साइन करो, पर मैं साइन नहीं किए। तो उन्होंने मैंने बहुत ज़्यादा अपशब्द भी बोले। मैडम ने मेरी पर्सनल लाइफ तक भी मैंने बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा गया। तो ਜਦੋਂ मतलब मेरे कोल भी आया यादविंदर सिंह, कहते मैडम साइन करो, पर मैं कितने मैं कुंडी खोल के बाहर आई। तो बाहर आके ना मेरे ऑफिस के बाहर एक जेंट्स बैठे से मेरे स्कूल टीचर ने, वो तो मैंने सारी घटना दसी। तो उस तो बाद फिर DO ऑफिस गया, पर DO ऑफिस वाले ने अज तक कोई कार्रवाई नहीं की हैगी। ये तो बाद मैंने बहुत ज़्यादा थ्रैट किया जा रहा, तो धमकियां मेरे ने फोन से 29 दसंबर की रात में मेरे को 8:30 बजे कॉल आई बंदे की। तो उन्हें मैंने ये गल कही फोन पर कि मेरे को लाइसेंसी रिवॉल्वर आ, असीं तेरा 5 मिनट दिमाग सैट कर देवांगे। तो सर मेरे नाल ना बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई है, धक्का किया जा रहा है। तो मैं सरकार अगे यही डिमांड चाहती हाँ कि मैडम तुरंत इत्थों बदलिया जाए, जिले तो बाहर, तो इन्हां दे बनदी कार्रवाई की जाए। ये है इहदे धरने के संबंध में इहदे ऑर्डर हुए सी, ऑर्डर कैंसल हो गए। होर इदां दी कोई भी गल है नहीं, जिहड़ी वो बना रहे ने सारा ये ब्लेम है। तो जो साडे अधिकारियों इहदी इनकुआरी करने दिता गया, उहदी जो रिपोर्ट आऊगी वो सामने आई जाएगी। यादविंदर कौन है इत्थे, उन्होंने भी हत्थों पाई की है जिहड़े ला के कुंडी? कोई हत्थों पाई नहीं, कोई कुंडी नहीं लाई गई। वो इत्थे BRP उन्होंने पोस्ट आ, उस तो बाद रिलीव किए गए ने, वो अपने स्कूल च।
मैडम फिर ਇਹ ਚੇਂਜ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਸਾਰੀ ਏਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਇਦਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੈਬਨ ਬਣਿਆ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਏਗਾ ਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨਸਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਗੱਲ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੜਕੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਰਡਰ ਹੋਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੈਨਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਵਾ ਰਹੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਮਾਰ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਵਾਇਆ ਜਾ। पठानकोट में आतंकवादी हमले के बाद जहां पूरे देश में हाई अलर्ट जारी किया गया है और सुरक्षा के मजबूत प्रबंध करने के वादे किए गए हैं, वहीं 6 महीने पहले भयानक हमले की गहरी चोट सहन कर चुके दीनानगर शहर शायद अभी भी सुरक्षित नहीं। बड़े बड़े वादे करने के बावजूद भी आज भी दीनानगर में सुरक्षा की बहुत कमी पाई जा रही है। चाहे जगह जगहों पर नाके लगाए गए हों, लेकिन वहां पर पूरी तरह से पुलिस बल तैनात न होने के कारण दीनानगर को अभी भी सुरक्षित नहीं कहा जा सकता। नॉर्थ कोरिया बर्थडे से पहले तानाशाह किम ने किया शक्तिशाली हाइड्रोजन बम का परीक्षण और आया भूकंप। नॉर्थ कोरिया ने कहा है कि उसने अपने पहले हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। नॉर्थ कोरिया की सरकारी टेलीविजन चैनल के अनुसार हाइड्रोजन बम का परीक्षण आज 10 बजे किया गया। इससे पहले परीक्षण स्थल के समीप रिक्टर पैमाने पर 5.1 की तीव्रता वाले भूकंप के झटके भी महसूस किए गए। जिस जगह झटके महसूस किए गए थे वहां पहले परमाणु परीक्षण किया जाता था। बता दें कि 8 जनवरी को नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग बर्थडे है। अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र की ओर से परमाणु तथा मिसाइल परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद नॉर्थ कोरिया ने चौथी बार भूमिगत परमाणु परीक्षण किया। उत्तर कोरिया ने कहा है कि अमेरिका की शत्रुतापूर्ण नीतियों के कारण खुद को सुरक्षित रखने के लिए वे अपने परमाणु कार्यक्रम जारी रखेगा। वे एक जिम्मेदार परमाणु राष्ट्र के रूप में काम करेगा और जब तक उसकी संप्रभुता को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होगा तब तक वे इसका इस्तेमाल नहीं करेगा। पंजाब के पठानकोट में आतंकी हमले पर देश में सियासत भी तेज हो गई है। विपक्षी दल कांग्रेस ने संवाददाता सम्मेलन कर सरकार को घेरने की कोशिश की तो बीजेपी ने कांग्रेस के इस कदम की निंदा करते हुए कहा कि देश को कांग्रेस से आतंकवाद विरासत में मिला है। सबसे पहले कांग्रेस नेता और पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे सामने आए और पठानकोट हमले और आतंकवादियों की घुसपैठ को लेकर सरकार पर 5 सवाल दागे। शिंदे ने मोदी सरकार को कटघरे में रखते हुए कहा कि अलर्ट के बाद भी कैसे हमला हो गया, क्या सरकार सो रही थी? कांग्रेस की सरकार से 5 सवाल। पाकिस्तानी उच्चायुक्त को बुलाकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पठानकोट हमले का मामला क्यों नहीं उठाया? गृह मंत्री ने गलत ट्वीट क्यों किया और बाद में डिलीट क्यों किया? पीएम या गृह मंत्री या रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन का नियंत्रण अपने हाथों में क्यों नहीं लिया? स्पष्ट कमांड और कंट्रोल संरचना का गठन क्यों नहीं किया? सुरक्षा में खामी का जिम्मेदार कौन? प्रधानमंत्री बताएं कि इंटेलिजेंस अलर्ट के बावजूद पठानकोट एयरबेस में आतंकवादी कैसे घुसे? आतंकवादियों की पहली घटना और एयरबेस में मुठभेड़ के बीच 20 से 24 घंटे का वक्त बीता। इस घातक चूक का कारण क्या था? क्या रक्षा मंत्री आतंकवादियों के एयरबेस तक पहुंचने के लिए गृह मंत्रालय और पंजाब पुलिस को जिम्मेदार ठहरा रही हैं? इस चूक से जवानों की शहादत का जिम्मेदार कौन है? क्या ये ड्रग्स से संबंधित आतंकवाद है और क्या घुसपैठ करने वाले आतंकियों ने उसी रास्ते, तरीके और लॉजिस्टिक सपोर्ट का इस्तेमाल किया जो ड्रग्स तस्कर पंजाब प्रशासन के अधिकारियों की मिलीभगत के साथ करते हैं? 184 जो IC 184 था, वो जब टेरर लोगों ने रोक रखा था और 3 महत्वपूर्ण जो लोग थे उसमें मौलाना अजहर थे प्रमुख और दूसरे 2, और उनको छोड़ने के लिए दिल्ली से, असल में तो ये जो 2 लोग कश्मीर में थे उनको प्लेन से लाया गया, तब तक हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है वो यहाँ रुके थे। वो लाने के बाद मौलाना अजहर और दूसरे 2 लोग उनको साथ में लेके गए और कंधार में छोड़ दिए। टेररिस्ट। और जब से 99 से उनको छोड़ दे दिया, तब से चाहे जैश मोहम्मद हो या
दूसरे संगठन हो, उन पर एक विश्वास आ गया कि हम कुछ भी करें तो भारत, उनके पास कोई ताकत नहीं है। 99 में हल्ला हो गया, लाल किला पर हो गया, जम्मू कश्मीर के असेंबली पर हो गया, और आखिर भारत का सर्वोच्च स्थान है जो पार्लियामेंट, वो 13 दिसंबर को अभी अभी उनको श्रद्धांजलि हो गई, जो लोगों ने अपना जीवदान दिया था वहां। तो वो किस वक्त हो गए थे? 99 से लेके दो लाल किला पर जो हल्ला भी हो गया था, तो ये 4 हल्ले जो महत्वपूर्ण थे वो एनडीए के टाइम हो गए थे। वहां तो कभी किसी हम लोगों ने हिंदू टेरर की बात नहीं की थी। हमारी तो भूमिका बहुत स्पष्ट है कि टेरर किसी जाति का, धर्म का नहीं होता है, उसका रंग कोई नहीं होता है, लाल होता है या हरा होता है या भगवा होता है, आखिर वो दहशतवादी है। तो इस तरह का ये बनाव बनाते चलते हैं और लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। तो ये लोगों को हम समझाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब भी सत्ता पे आती है तो ये टेररिज्म इस देश में बढ़ते रहा है। अभी अपने पठानकोट में इतना सैन्य है, वो एक सेंटर है हमारा प्रमुख, और 50,000 से ज्यादा मेरे ख्याल से वहां हमारे सैनिक हैं। वो जब इंटेलिजेंस का आपको इशारा मिला था तभी पूरा एयरपोर्ट कॉर्डन करने का था। ठीक है, जब बॉर्डर से आए होंगे वो लोग, लेकिन एयरपोर्ट पूरा कॉर्डन करके उनको अंदर नहीं आने को देने का था। और आप ही कहते हैं कि उनका ये इरादा था कि हमारे सब विमानों को उड़ाने का इरादा था। तो ये छोटी बात है समझने की, लेकिन नहीं किया उन्होंने। बिना कुछ इशारा देके अब्रप्टली गए पाकिस्तान के सरकार को मिलने के लिए, नवाज शरीफ को। ऐसा कोई मैंने अभी तक मेरे पॉलिटिकल करियर में नहीं सुना है कि कोई प्रधानमंत्री अब्रप्टली वहां किसी देश के प्रधानमंत्री को मिलने के लिए जाता है। इसका तो पहले से गुप्त इन्होंने सब रखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री वहां विजिट देना चाहते हैं। 1 महीने से काम चला होगा, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री की लाइफ की इतनी रिस्क है। वो बीजेपी के प्रधानमंत्री है और पाकिस्तान को विजिट करते हैं, तो उनकी लाइफ हमारे लिए बहुमूल्य है, बहुत कीमती है। तो ये काम तो इंटेलिजेंस ने लिया होगा, लेकिन दुनिया को बताते वक्त ये कहते हैं कि वहां गए, और गए तो गए, आए वहां तो कुछ बातें हो गई, वो कुछ रिलीज किया, कुछ हमें तो मालूम नहीं क्या बातें हो गई। ये जब एक देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश के प्रधानमंत्री को मिलता है, तभी क्या बातें हो गई ये लोगों को, देश को बताना जरूरी होता है, तभी देश चलता है। ये सरकार पूरी फेल हो गई है। इस देश को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके पास कोई यंत्रणा नहीं है। यंत्रणा है, लेकिन उसे ठीक तरह से काम नहीं लेना चाहते। इसके बाद पलटवार में बीजेपी ने राष्ट्रीय सचिव श्रीकांत शर्मा को उतारा। श्रीकांत शर्मा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी इस मामले पर सियासत कर रही है। शर्मा ने कहा कि देश को कांग्रेस से आतंकवाद विरासत में मिला है। हम बार बार अपने आर्म फोर्सेस को इस कार्रवाई के लिए बधाई देते हैं कि उन्होंने अपनी इस जान को हथेली पर रखकर इस तरह के गद्दारों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। लेकिन दुर्भाग्य से मित्रों, कांग्रेस पार्टी लगातार जब ये ऑपरेशन चल रहा था उसके दौरान कांग्रेस की तरफ से जिस तरह की प्रतिक्रिया आई, उनकी हम कड़ी भर्त्सना करते हैं। क्योंकि जब ऑपरेशन चल रहा होता है, जब पूरा देश एकजुट होकर अपने जाबाज सिपाहियों के पीछे खड़ा होता है कि दुश्मन अगर आया है तो दुश्मन को जब तक मौत के घाट ना उतार दिया जाए तब तक कोई राजनीतिक टिप्पणी करना किसी को शोभा नहीं देता। लेकिन अवसाद से ग्रस्त
नकारात्मक सोच से ग्रस्त कांग्रेस लगातार इस तरह की टिप्पणियां करती रही हैं और आज देश के पूर्व गृह मंत्री श्रीमान शिंदे साहब ने एक बार फिर देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश की है। उन्होंने मुंबई हमले का जिक्र किया है, मुंबई हमले में जो वीडियो है उसका भी जिक्र किया है, हमारे नेताओं के द्वारा जो बयान दिए गए उनका। आज हम 26/11 की तुलना पठानकोट से नहीं करना चाहते, लेकिन कांग्रेस को यह जरूर ध्यान में रहना चाहिए कि जब समुद्र के रास्ते 6 आतंकवादी आए थे, उन्होंने किस तरह की तबाही मुंबई में की थी। जो मंजर है वो सबने देखा था, उसकी ज्यादा जिक्र करना ठीक नहीं है। क्योंकि उन्होंने मुंबई का जिक्र किया है इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूं कि 6 आतंकवादियों ने कितनी तबाही वहां मचाई थी। सूचनाएं थी, लेकिन उस समय सरकार सो रही थी और उस समय कांग्रेस के जो नेता थे उनके बयान और भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण थे।